Okay, Monica. हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, हमारा वीना ક્યાંય ખૂટતું નથી, તમારા हारे हो जी प्यारा जी, हारे हो जी प्यारा जी, सहारा विना कई बीज उगતું નથી, सहारा विना बीज उगતું નથી। हारे हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ખૂટતું નથી, તમારા વિના ક્યાંય ખૂટતું નથી। जगत को संगे जसो, जगत को संगे केवल सत्संगे जसो, केवल सत्संगे जसो, दादाजी नो हसतो मुख, दादाजी नो हसतो मुख, दर्शन था सो शमनी दर्शन हीरा मोती महाराजी, हीरा मोती महाराजी, समृद्ध सतिया मीना डलडो ठरતું નથી, समृद्ध सतिया मीना डलडो ठरતું નથી। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ખૂટતું નથી, તમારા વિના ક્યાંય ખૂટતું નથી। ભરમાં લોખો લાગે, દુનિયા ભરમાં લોખો લાગે, सत्संग बिना सुनो लागे, सत्संग बिना सुनो लागे, फिर वो दिवस रात जागे, फिर वो दिवस रात जागे, ज्ञानी भवनी बावट मांगे, ज्ञानी भवनी बावट मांगे, रोको अतिक्रमणा जी, रोको अतिक्रमणा जी, आत्म रमना वीना गाय घूटતું નથી, आत्म रमना हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी प्यारा जी, हारे हो जी प्यारा जी। Jai Sachidanand. Okay. No kalamo. Monica, number 1. જય સચ્ચિદાનંદ। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ થઈ તારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ
અહમ ના દુબે ના દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે એવી શાદ્વાદવાની શાદ્વાદ વર્તન શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Monica, charisma only, number 2. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પરમાન ના દુબે ના દુબાય કે દુબા કે પ્રતિ ના અનુદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પરમાન ના દુબે એવી સાદ્વાદ વાણી સાદ્વાદ વર્તન અને સાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Very good. Number 3, charisma Didi. જય સચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી या आचार्यों अवर्णवाद अपराध अविनय न करने की परम शक्ति आपको. Okay, Kuchi, Chinai, number 4. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માની શૈલી પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિ ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Ahmedabad, number 5. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા તંતેલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા તંતેલી ભાષા બોલે તો મને રુજુ ભાષા બોલવાની શક્તિ આપો. Monica, number 6. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી પુરુષ યા નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો ઈચ્છાઓ ચિંતાઓ યા વિચાર સંબંધી દોષો ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિ ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. Okay, charisma only, number 7. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુગમાન પણ ન કરાય તેવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Very good, charisma. Kushi, number 7. Number 8, sorry, number 8, number 8. હે દાદા ભગવાન, મને Hey, કોઈ પણ Kushi, Ahmedabad. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Okay, Divya, number 9. હે દાદા ભગવાન, મારા જગત કોયાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની ફલમ તક આપો. Very good. Tirth, are you there? Tirth? કેમ ગુમ થઈ જાય? Okay, number 8, નવ કલમ બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Okay, very good. ન કરાય ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય આવે. હે Tirth. Okay? ઓકે. પાકું કરવાનું બરાબર. ઓકે, દીપિકાજી, ત્રિમંત્ર બોલાવીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. વિતરાગાય. નમો વરિહંતાણં. નમો સિદ્ધાણં.
नमो चित्तानं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो नमस्कारं सवपावपणासनो सर्वपावपणाशनो मंगलानं च सौवेसिं मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद Okay. Daily prayer. This. This, are you there? Okay, खुशी अहमदाबाद. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Study prayer, Chinai. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. दिव्या. हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हमने आपके बच्चे हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. Okay, દાદા ભગવાન સેપરેશન બધા ગુજરાતી વાળા છે તો ખુશી અમદાવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, ખુશી જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, ખુશી રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, ખુશી ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. ओके, तो आज कितना दिन की बात स्टडी का देखेंगे आप. स्टडी का पॉजिटिविटी क्या है, इतना कितना दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, तो कैसे चल रहा है. ओके, मोनिका दीदी. जय सच्चिदानंद। मेरे कल से ही स्कूल स्टार्ट हुई थी, तो मैंने कल से कोई लेसन्स नहीं लिए, बट आज मैथ्स मैम ने थोड़ी टीचिंग सिखाई थी अलजेब्रा में, तो मैंने उस सम को मैंने ट्राई भी किया. 5 सम सिखाए थे जिसमें मैंने प्रैक्टिस भी की उसमें,
और साथ ही तमिल में टेस्ट था तो उसके लिए मैं रिलेटिव होना था, तो उस पढ़ाई के लिए मैंने अभी रखा है, सुबह उठ के पढ़ूंगी इसको। ओके, आप लोग को सब रिजल्ट आ गया? नहीं, अभी नहीं आया। अच्छा, नहीं है, ओके। करिश्मा दीदी, हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी स्कूल अभी तक चालू नहीं हुई है। ओ नहीं है, छुट्टी है? ओ नहीं। खुशी आपको भी छुट्टी है? हाँ, कितना दिन से? मंडे को स्टार्ट होगा। हाँ, मंडे को, ओके ओके। तो क्या किया आज फ्री टाइम में, क्या किया तो करिश्मा दीदी? आज मैंने मेरी असाइनमेंट्स लिखी थी। क्या थी? असाइनमेंट स्कूल में दिया था। हाँ, तो वो स्टडी में नहीं आता है, असाइनमेंट स्टडी में नहीं आता है। हाँ, तो हमने क्या बोला, स्टडी में कैसा पॉजिटिव वो बोला ना हमने। खुशी, हाँ, मैंने भी आज असाइनमेंट 3 आवर्स मैंने आज लिखा था, कौन से असाइनमेंट किया? मैथ्स और साइंस। और आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, क्या अभी नहीं है एक भी? है तमिल और मैथ्स अभी भी है। तमिल क्यों नहीं किया आज? तमिल मैं कल करूंगी ऐसे। आज क्यों नहीं किया, हमने ऐसा बताया। अब फ्री टाइम था ना, हाँ, तो फ्री टाइम का यूज वो बताएगा प्रदीप दादा का, फ्री टाइम का यूज दादा कैसे करते थे। वो मस्ती किया आज सारा दिन, मैं तो असाइनमेंट कितना टाइम में किया? 10 घंटे? assignment हाँ, मैं कितना? 3 आवर्स। 3 आवर्स, ओके। अहमदाबाद, जय सच्चिदानंद। अभी मेरी एग्जाम चल रही है तो अच्छा चल रहा है पढ़ाई का। तो अभी चल रहा है? नवरात्रि के बाद? हाँ, हमारी नवरात्रि के बाद होती है। तो आपको नवरात्रि में पढ़ने का होता था? हाँ, पूरे दिन पढ़ती थी और शाम को जाती थी नीचे। ओके ओके ओके। तीर्थ, तीर्थ, आपको पढ़ाई में कैसा पॉजिटिविटी है? तीर्थ, आपको सुनाई देता है? आपका साउंड नहीं आता है, साउंड नहीं आता है तीर्थ। ये निकाल दो कान में से, डिस्कनेक्ट करो, अभी बोलो। दिवकान जी क्यों, इज नॉट साउंड, नो साउंड। वो उसमें से निकाल दो वायर, फोन में फोन से? में डाला है, फोन में से वायर निकालो। कनेक्शन अच्छा नहीं है दीपकान जी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब बोलो। अब आ रहा है? हाँ बोलो। तीर्थ, बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज तीर्थ, ओके। आपने अभी आपने रिपोर्ट नहीं भेजा है, रिपोर्ट भेजना। ओके ओके दीपकान जी। जय सच्चिदानंद। ये जिनको भी वैकेशन मिला है, फ्री टाइम मिला है, तो हमें हमारा जो वीक सब्जेक्ट होता है ना, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तमिल आपने कितना किया?
खुशी चेन्नई नहीं हाँ, किया, नहीं किया, तो वो फ्री टाइम गया ना अपने हाथ से। हाँ, मैथ्स भी नहीं किया, किया था। तमिल नहीं किया था, लेकिन हाँ, तो क्यों नहीं किया? लेकिन टाइम टेबल में तो है, टाइम टेबल फॉलो नहीं किया। हाँ, स्कूल में फ्री होता है गरबा के लिए तो शाम को जाते हैं ना। हाँ, जो हमारा स्कूल के बाद का टाइम है उसमें तो हम कर सकते हैं ना। देखो आपके ऊपर वॉच कौन रखता है? कोई वॉच रखने वाला है? कोई नहीं। मोनिका तो को एक्सेप्ट नहीं है ना, वो वॉच करेगी तो। हाँ नहीं है वो, ऐसा है। आपको कोई वॉच करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए ना, तो आप ही बोल दो कि आप वॉच करना मेरे पर। करिश्मा वॉच करेगी? हाँ, नहीं, करिश्मा वॉच नहीं करेगी, मोनिका वॉच करेगी तो चलेगा? हाँ, नहीं चलेगा। कितना दिन से 2 साल हो गया, नहीं चलता है। अच्छा देखो, मुझे तो एक बात समझ में आती है, अगर आप अपना खुद के डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं तो आपको किसी को वॉच करने के लिए रखना ही चाहिए। और ऐसे अगर वॉच नहीं रखेंगे तो उसमें रिजल्ट्स में बहुत बड़े सरप्राइजेज आ सकते हैं। सरप्राइजेज तो समझे ना? हाँ, तो वॉच रखने में तकलीफ क्या है आपको? मोनिका को रखेंगे तो वो तो वैसे भी वो बहुत बिजी होती है, लेकिन वो फिर वो बोलेगी तो चलेगा? वो शायद बोलेगी, थोड़ा डांटेगी भी शायद। हाँ, वो वॉच बैग वॉच करने को रखा तो वो बोलना तो चाहिए ना। वॉच जो वॉच करते हैं उनको कि बोलना नहीं चाहिए, सिर्फ वॉच करने का, बोलने का नहीं कुछ। बोलने का, हाँ, बोलना, फिर बोलेगा तो चलेगा ना। हाँ, हाँ अच्छा है, अपने खुद के लिए अच्छा नहीं लगेगा, वो कोई बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। फिर आपको ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, खुशी खुशी अहमदाबाद आपके कोई वॉच करता है? हाँ, कौन? दीदी और मम्मी। अच्छा देखो, दीदी और मम्मी, ये खुशी अहमदाबाद, आपको हाँ, दीदी और मम्मी तो समझो अच्छे हैं, लेकिन दीदी वॉच करती तो अच्छा लगता है? हाँ, वो कभी बोलती है डांटती है तो भी अच्छा लगता है? हाँ, हमारे लिए तो डांटती है। ए खुशी बेटा, देखो चेन्नई, उन्होंने तो अपनी दीदी को कर दिया, कह दिया, तो आप अपनी दीदी को कह दो प्लीज कीप वॉच ऑन मी। हाँ, हाँ, वो मोनिका तो ना ही बोलती रहती है। दादा मुझे वो नहीं। बाजू है, नहीं हाँ वो बाजू जब भी मैं कहती हूँ और बहुत देती है, और सत्संग के बाद में आकर कहती है तुम वॉच ही मत करो, ऐसा कहती है नहीं सत्संग। नहीं, लेकिन अभी तो अब तक तो वो कमिट नहीं हुआ था ना कि यू टू कीप वॉच ऑन हर। अभी तो वही बोलती है कि वॉच ऑन मी, तो अभी वो ना बोल रही। हाँ, बाद में वो बदल भी देती है मुझे, वॉच मत करो ऐसे। यानी वो पलट जाती है। हाँ, और बैक हाँ, आंसर देती है जब भी मैं बोलती हूँ तो। अभी अभी है ना, डैडी मम्मी को नहीं, वो बैक आंसर वाला है ना, वो आप हाँ, अपनी दीदी दीदी का भी नाम लिख देना अंदर। हाँ, चलेगा ना? हाँ, चलेगा।
हाँ, जिनको दीदी है, बड़े हैं, तो उनको ऐड करना बहुत अच्छा रहेगा। डैडी मम्मी को तो आप नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारे लिए ये बहुत अच्छा लेसन भी है। खुशी अहमदाबाद, सुना आपने? हाँ आपकी वो प्रेयर में डैडी मम्मी की बात की ना, तो उसके हाँ साथ दीदी दीदी को भी जोड़ देना। दीदी हाँ को नहीं बताना लेकिन। हाँ, जय सच्चिदानंद, समझ में आया? खुशी चेन्नई, वो रखो, आपके लिए बहुत अच्छा है। और मोनिका प्लीज कीप अ वॉच ऑन हर। वो सुने ना सुने, वो थोड़ा वो, इट विल बी अ टेस्ट फॉर यू, बट इट विल बी अ गुड लेसन फॉर यू आल्सो। हाँ, जय सच्चिदानंद। Okay, जय श्री जान, क्विकली अव्यय, स्टडीज में कितना पॉजिटिविटी क्या है स्टडीज में? पॉजिटिविटी आपने रिपोर्ट नहीं भेजा है दरअसल, आपका कुछ पॉजिटिविटी है? इस स्टडी में क्या किया? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ क्या रही है किया? दरअसल। ओ अव्यय, आपने मैथ में क्या किया, क्या करते हैं एवरीडे? मैथ्स में हर रोज एक्सरसाइज करता हूँ, क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चंस करता हूँ एवरीडे? एवरीडे 30 आवर्स मैथ्स। एवरीडे मैथ करते हैं आप? नहीं, आधा घंटा मैथ्स करता हूँ एवरीडे। 30 मिनट, आप 30 आवर्स बोले। हाँ, 30 मिनट। मैं भी सोच में पड़ गया, 30 आवर्स तो कैसे करेगा? 13 आवर्स का मैथ एवरीडे करते हैं? 33, हाफ एन 30 आवर। मिनट। कितना मैथ करते हैं एवरीडे? आधा घंटा। आई नो, कितना प्रॉब्लम्स करते हैं? आई थिंक 6-7-8 क्वेश्चंस करता हूँ उस और चेक हर कौन एक करता क्वेश्चन। है? हाँ, चेक कौन करता है? चेक कौन करता है? चेक तो मैं ही खुद कर लेता हूँ टेक्स्ट बुक से पीछे। आपने लास्ट टाइम मैं बताया, ओ दैट इज नॉट राइट, योर मम्मी हैज टू चेक इट। हाँ, ओके। हमने बताया था ना, वो सेल्फ चेक करेगा तो सब कुछ करेक्ट ही आ जाएगा। और आप मेथड्स अच्छी नहीं करते हैं तो कोई पकड़ने वाला होगा ना, तो ये 100 आउट ऑफ 100 मैच में आएगा। मैच में 100 आउट ऑफ 100 आते हैं नहीं। तो कुछ गड़बड़ है ना, हाँ, तो गड़बड़ पकड़ने की है। मैथ्स में आंसर ओनली करेक्ट नहीं होना चाहिए, उसकी स्टेपिंग जो होती है ना, मेथड, वो भी हाँ। देखते हैं वो लोग, ठीक है। इसीलिए किसी को बताना। हाँ, हाँ, No shortcuts, remember, no shortcuts in math. Every step has to be written. दरअसल यस। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी पॉजिटिविटी ये है कि मैं पहले मुझे मैथ्स और साइंस में मुझे कंटाला आता था, फिर उसके बाद मैं रोज आधा घंटा साइंस करता हूँ और आधा घंटा मैथ्स करता हूँ। ओके भाई, कितना करता है, कौन चेक करता है? वो साइंस तो मैं वो चैप्टर रीड करता हूँ और मैथ्स में वो मैं अपने आप पीछे से चेक करता हूँ किसके साथ? अपने आप। at the end of the textbook they have the answer. Oh, that is not right. No, अब मेथड 100 आता है आपको? नहीं, Then it is no, that is not a right method. किसी के पास टीचर, ट्यूशन, किसी के पास मम्मी पापा, किसी के पास चेक करवाने का है, then you will get 100 out of 100 guaranteed. Okay, श्रेया दीदी, और हिस्ट्री का क्या हुआ? अभी मैं कभी कभी पढ़ता हूँ। अरे भाई, आपका अच्छा स्कोर नहीं आता है, हिस्ट्री में आपको अच्छा नहीं है तो एवरीडे हिस्ट्री कुछ पढ़ना मांगता है। श्रेया, हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा मैथ्स में पहले सब सम्स रॉन्ग ही होते थे,
मैं स्टेप्स नहीं करती थी, सीधा आंसर, पर अभी स्टेप्स के साथ करती हूँ और अच्छे मार्क्स आते। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके प्रदीप दादा। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। बोलो बोलो। सच्चिदानंद। प्रिया बोलो जय तो सही। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चलो, आपकी बात सुनी। आपको कोई आपकी गलती बतावे, ये अपना सिस्टर हो, ब्रदर हो, छोटी उम्र का हो, बड़ी उम्र का हो, कोई भी हो, तो हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा? ये आप क्योंकि सुनते हैं? वो बोलो खुशी दर्शक आपको बंद तमिलनाडु क्यों वाले करते? कहा गए, अव्य अव्य मत कुछ रखो, लिखो मत, सुनो। दादा भगवान कहते थे कि हमारी गलती जो खुद को दिखे तो अच्छा है, लेकिन कई कई गलतियां ऐसी होती है जो हमें कोई दिखावे तो हमारा फायदा बहुत होता है। फिर इसमें हमें छोटा बड़ा उसमें कोई आता नहीं है। हमें तो सिर्फ यही है कि हमारी ये वीकनेस जिसने हमें लाइट दिखाया तो हमारे लिए बहुत बड़ा उपकारी है। जो ऐसी दृष्टि, ऐसी समझ जब हमारे जीवन में डेवलप होती जाएगी तो दादा भगवान की तरफ से मैं मानता हूं कि हम प्रगति करने में कभी भी रुकावट नहीं आएगी। हम टॉप पर पहुंच सकते हैं, लेकिन कोई हमारी गलती दिखाने वाला चाहिए। ये बोलने का नहीं है, लेकिन अंदर रखने जैसा है कि अगर कोई मेरी गलती दिखावे तो उनका बहुत बड़ा उपकार है। आपको ऐसा अंदर अच्छा लगता है कि कोई मेरी गलती दिखावे तो अच्छा है, ऐसा लगता है आपको? इसका नहीं। मतलब क्या हुआ कि ज्ञानी पुरुष हमेशा कहते थे, जैसे श्रीमद राजचंद्र जी हो गए, उनकी वाणी में है स्वच्छंद। स्वच्छंद समझ में आता है खुद की मर्जी के हिसाब से, वो मैं जो कर रहा हूं वो सही मान करके चलते रहने। इसमें हमारा प्रगति होना बहुत बहुत मुश्किल है। इसीलिए दादा भगवान कहते थे कि कोई हमें गलती दिखाने वाला अगर मिल जाए तो हम बहुत भाग्यशाली है। और मदर, फादर, सिस्टर हमारे से छोटा हो तो बहुत अच्छा है। हमारा ईगो कितना है हमें पता चल जाएगा। हम बोलते हैं ना कि हे दादा भगवान, मने कोईनु अहम न दुभावाय। अरे खुद का अहम पहले अंदर गवाता है तो पता तो चले कि ये छोटा आदमी उस समय आपकी बुद्धि क्या करेगी। ये मैं आपको बताता हूँ। आपका घर में छोटा भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, अगर जो आपकी गलती दिखाएगा तो आप जांच करना, उनकी गलती आपको ज्यादा दिखेगी। बात सही है? हाँ। बात सही है? हाँ। यस और नो? तो हम कैसे प्रगति कर पाएंगे? कैसे हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट होंगे? कैसे दादा भगवान की तरह हम अच्छे इंसान बन पाएंगे? हमारी पढ़ाई, हमारी समझ, हमारी शक्ति, हमारा समय, जो कुछ भी है सब जो प्रॉपर ट्रैक पर नहीं आया तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हर कॉर्नर से जितना जरूरी है इतने हर कॉर्नर को समझने जैसा है। तो मेरा आपको एक
रिक्वेस्ट है, जो पहले वो तमिलनाडु वाले बताते थे ना, वो अपने दीपक आनंद जी साहब, वो कहाँ गए वो आ बच्चे गया, लोग? आ गया ये लोग, आ मैं गए। आपको ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी गलती कोई भी दिखावे तो मुझे दुख क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो गलती मेरे प्रगति में मुझे बाधक है, मुझे आगे बढ़ने नहीं देती है, तो अगर किसी को मेरी गलती दिखती है और मुझे कोई लाइट देता है तो हमें खुशी होना चाहिए। नाम खुशी रखने से खुशी थोड़ा हो सकता है। खुशी नाम रखने से खुश हो गए आप? क्या लगता है आपको? हमारा माइंड ब्रॉड होना चाहिए। जिनको आगे बढ़ना है वो कैसे होते हैं? दादा भगवान के पास से मैंने सब सुना है और देखा है। दादा के पास दादा ने कभी किसी को रिएक्शन नहीं दिया, सबको वेलकम किया। क्यों? कि अच्छा है, जो चीज मुझे नहीं दिखती थी उन्होंने दिखाया, वो तो मेरा गुरु है, उनका उपकार मानना चाहिए। और वो कैसी बातों में पता है, आप तो गलती के बारे में बोलते हो, पढ़ाई हो, दूसरा कुछ हो, आपका समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हो, लेकिन दादा भगवान कैसी समझ के साथ जीते थे। अगर 10 आदमी के बीच में किसी ने बोला कि दादा भगवान तुम्हारे में अक्ल नहीं है, तो ऐसा इंसल्ट करने वाले का भी दादा भगवान उपकार मानते थे। और हम फ्री टाइम का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। हम कुछ आगे बढ़ने में, स्टडी में कुछ गलती होती है, गड़बड़ होती है, तो कोई हमारी गलती दिखावे तो उनका कितना उपकार मानना चाहिए। लेकिन उपकार दृष्टि आना वो इंसान के जीवन में बहुत बहुत बड़ी एक अच्छा गुण है। आपको समझ में आया? जैसा किसी की सेवा करना, किसी को खिलाना, वो जैसा हमारे में एक पॉजिटिविटी होती है, वैसे हमें कोई हेल्प करे, कोई हमारी गलती दिखावे तो हमारे लिए बहुत बड़ा उपकारी है। जो ये समझ जिसमें भी आ जाएगी, तो मैं मानता हूँ कि एक दिन वो दादा भगवान के बात जब पढ़ेगा, सुनेगा, तो सचमुच उसकी आंखों में एक बार आंसू आ जाएगा कि दादा भगवान ऐसे ही दादा भगवान नहीं हुए। अक्रम विज्ञानी ज्ञानी पुरुष ऐसे नहीं हुए हैं। हर संजोग से वो गुजरे हैं, लेकिन हर संजोग में उनके पास पॉजिटिव दृष्टि थी। क्या थी? पॉजिटिव दृष्टि। तो आप लोगों में मैं दादा को प्रार्थना करता हूँ, इस उम्र में आप लोग हम सबको मिले हैं कि आप में पॉजिटिविटी डेवलप हो। आपकी गलती दिखाने वाले पर उनका आप उपकार मानो और आप आगे बढ़ो। ठीक है सब बच्चे लोग, अंदर से डिसाइड करो हाँ कि कोई भी आदमी अगर मेरी गलती दिखाएगा, रास्ते पर चलने वाला आदमी भी मेरी गलती दिखाएगा, वो मेरा गुरु है। दादा भगवान क्या कहते थे? मैंने पूरी दुनिया को गुरु बना के मैं शिष्य बन के जीता। आपको समझ में आया? ठीक है बच्चे आपने लोग, सुना? हाँ तो कल हम देखेंगे आप ये डेफिनेशन गुरु का प्रदीप दादा ने दिया, आपको कैसे लगा और आप क्या करेंगे, उसका होमवर्क है। ओके, मालूम पड़ गया सबको? दीपक आनंद जी साहब के क्या हुआ? एक शब्द बे शब्द बोल जो बालकों ने। हाँ, मैंने तो बोल दिया ना हाँ शुरुआत में जो बोलिए, बोलना हाँ था। हाँ, अभी पद सुनेंगे प्रदीप दादा। ओके ओके, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जैसे ओके बच्चे लोग, खुशी चिनाई क्या बोला गुरु का डेफिनेशन? हाँ, प्रदीप दादा ने ये बोला कि गुरु जो भी गलती बताते हैं हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं। ओके, वो जरा सोचना, कल बताना उसके बारे में, रिसर्च करके हमको